Hello students. Today we are going to start our next topic in the force and the law of motion, and today we are going to discuss the second law of Newton in the motion chapter. Okay, so first we will take the brief preview on the previous lecture because you are going to forget the previous lectures as I already know. So force will be an external effort which may be to give some type of rest or to stop the moving body, or maybe to give the change of the direction to any object will be considered as the force, and effects of force will be the taken as the body can be moved at the rest, or maybe it can be applied to stop the body, or it may be applied to change the speed of the body. Okay, and it may be it can give the for giving the changing the shape and the size of the body. Okay, then we have discussed the balanced forces and unbalanced forces. So if the equal forces act on the opposite direction of the body, then it will be considered as the balanced forces, and these balanced forces will be considered as the body will be cannot move, and it will be stays on the rest of the motion, or it will be stays on the state of the rest on the motion. And then the unbalanced forces, if the two different types of forces acting on the opposite direction of the body, then it will be considered as the unbalanced forces, and the body will be moving where the more force will be applicable on the direction of the body. Then the force of friction may be considered as the force of friction, and it is also will be created by it is created to oppose the motion over the surface of the object. Okay, then we will discuss the Galileo's experiment. Then we have discussed the Newton's law of motion. In that first law of motion, we will discuss that an object remains in the state of rest or in the uniform motion in a straight line unless compelled to the change that state by an applied force. It means that if we do not give any kind of external force, then the body will be stays on the rest position till we doesn't give the force external implication on the body. Okay, so that will be the first law, and for the first law we will discuss the inertia, and this is inertia's phenomena is considered as the law of inertia. On the basis of inertia we will give the first law of motion. That is why it is also known as the law of inertia. And suppose you will be asked in the examination that what will be the law of inertia, then you have to write the Newton's first law of motion. And what is the inertia? That will be the natural tendency to remain the object onto the state of the rest or in the uniform motion. It will be considered as its inertia. And examples we will see in the previous lecture. Also, inertia and mass will be related to each other. If the mass of the body will be changed, then the inertia will be changed, and if the inertia will be changed, then the mass will be changed. Okay, so this will be directly proportional to each other. And then we discuss the momentum of the body, and then we have discussed the what is the SI unit of the body, SI unit of the momentum. Okay, so this will be the previous study will already finished. Okay, now we'll be starting the second law of motion. The Newton's second law of the motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied force in the direction of force. So कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई कोई भी मोमेंटम का जो चेंज है, मोमेंटम का जो चेंज है वो किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट करेगा? तो वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसके ऊपर अप्लाई होने वाले फोर्स के ऊपर. ओके, मतलब कोई सिंपल पूछे तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो कि भाई जो फोर्स भाई साहब है, सेकेंड लोग क्या कहना चाहते हैं कि जो फोर्स भाई साहब है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोमेंटम, सॉरी चेंज इन द मोमेंटम. अब कोई पूछेगा कि ये सर फोर्स तो हम लोगों को पता है कि कोई धक्का है, कोई हम लोग किसी चीज के ऊपर पुश और पुल कर रहे हैं तो वो फोर्स है, लेकिन ये मोमेंटम को अगर हम लोगों को समझना है तो क्या? तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई बॉडी हो और वो बॉडी अगर किसी मास वाली हो और वो मास वाली बॉडी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस कवर अप कर रही हो,
तो उसको मैं क्या कह सकता हूँ, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, दैट विल बी कंसिडर एज इट्स मोमेंटम। अब तुम लोग ही मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, ओके, और मैं यहाँ पर पहुँच रहा हूँ, सपोज कि मैंने 10 किलोमीटर से मैं 30 किलोमीटर पर पहुँच गया, तो मेरा जो डिफरेंस है, मैंने जो चेंज किया डिस्टेंस, वो कितना डिस्टेंस मैंने चेंज किया, तो आप लोग बताओगे कि सर 20 किलोमीटर आपने डिस्टेंस जो है वो चेंज किया। सो फॉर दैट द 20 किलोमीटर, यानी कि आप लोगों को चेंज जो हुआ वो मेजर करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ा। क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्शन किया ना आप लोगों ने, दिमाग में क्या किया, सर 13 पे थे, उसमें से 10 माइनस किए, देन it will be considered as the 20 and this will be taken place as the change of the distance. So suppose if we have to measure the momentum, तो हम लोगों को पिछले लेक्चर में पता था कि मोमेंटम जो है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वी से। m यानी कि मास और v यानी कि वेलोसिटी। अब आप लोगों को पिछले लेक्चर में पता होगा कि भाई वेलोसिटी जो होती है वो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, so suppose initial velocity will be considered as the u and the final velocity will be considered as the v। ये भी आप लोगों को पिछले लेक्चर में सिखाया गया था। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, कोई पूछेगा इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या होगा, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा होगा m इंटू यू, क्योंकि अभी हम लोगों ने वेलोसिटी कौन सी कंसिडर की है, इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर की है, इस वजह से हम लोग इसे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चलो सेकेंड फाइनल मोमेंटम को मेजर करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम को मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से मास लेंगे। तो बॉडी का कोई मास जो है, मेरा मास कहीं यहाँ से यहाँ पर पहुँचने से कहीं चेंज हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ओके, मेरा मास जो है वो वैसा का वैसा कांस्टेंट ही रहेगा। पर अभी मैं यहाँ पर पहुँच गया, इस वजह से मैं फाइनल वेलोसिटी पर पहुँच गया, इस वजह से फाइनल वेलोसिटी को मैं लिखूंगा v। ओके, so that is how the initial momentum and final momentum will be considered. Now put this value in this equation, force proportional to momentum। अब हमारा मोमेंटम क्या है भाई, ओके, तो मोमेंटम जो है वो क्या है, m इंटू चेंज इन दी वेलोसिटी यानी कि v। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, अभी मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा रूल है कि भाई प्रोपोर्शनल की साइन को अगर हम लोगों को इज इक्वल टू की साइन से चेंज करना है तो हम लोगों को कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। कोई कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं हम लोग, जो कि होगा a to z से लेके कोई भी, पर मैं यहाँ पर कौन सा ऐड कर रहा हूँ, k वाला कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने k वाला कांस्टेंट ऐड किया। अब सपोज कि मोमेंटम जो चेंज हुआ वो मेरा चेंज कितना हुआ, तो फाइनल यानी कि 30 माइनस 10 जितना हुआ। ओके, हम लोगों ने अभी सब्ट्रैक्शन किया था, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, सब्ट्रैक्शन किया था 30 माइनस 10, तभी जाकर 20 मिला था। तो मेरे को अगर चेंज इन द मोमेंटम जो है वो मिलाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ चेंज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसा कर सकता हूँ। फाइनल माइनस इनिशियल को करूँगा तो मुझे चेंज मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ मैं अगर प्रोपोर्शनल की साइन को इज इक्वल टू की साइन से रिमूव करूँगा तो क्या मिलेगा, मुझे कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। तो वो मैंने कांस्टेंट ऐड किया, सपोज कि k, चलो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब k को मैं वैसे ही रखूँगा क्योंकि उसको अभी छूना मना है। तो फाइनल मोमेंटम हमारा क्या है, m इंटू वी है, और इनिशियल क्या है, m इंटू यू है। सपोज m जो है उसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ पर। नाउ f इज इक्वल टू k इंटू एम, और यहाँ पर क्या बचेगा, v माइनस यू। सपोज, तो ये एक चीज़ जो मैंने बोली थी कि आप लोगों को रिवाइज करनी पड़ेगी। अब कोई पूछेगा v माइनस यू मतलब कि चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी के अंदर जो भी चेंज हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे एक्सेलरेशन। याद है आप लोगों को, स्टडी किया था हम लोगों ने पहले चैप्टर के अंदर।
और जो ये चेंज इन द वेलोसिटी कंसिडर हुआ, दैट इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन. ओके, so force will be directly proportional to mass and the acceleration, and it is considered as the second law of motion. Okay, second law of motion. ओके, तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. आज टॉपिक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है. पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है. 3 टाइम्स आप लोगों को होमवर्क के अंदर लिखना है. इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं चलेगा. और इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर भी दिया गया है और मैंने यहाँ पर भी लिखा है, आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझ में आए. इसी वजह से यहाँ पर से थोड़ी सी जगह कम पड़ गई थी, इसीलिए यहाँ पर लिखा है. ओके, सारी चीज़ें हैं. ऑब्जेक्ट का मास m है, वेलोसिटी जो है वो फाइनल इनिशियल u है, फाइनल v है. ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है हम लोगों ने. ओके, तो आखिर में जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू m इंटू ए, और इट विल बी कंसिडर एज द f इज इक्वल टू k m एंड a. ओके, सो अब दूसरी एक चीज़ जो डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि भाई फोर्स का हमको इक्वेशन मिल गया m इंटू ए. अब इसका यूनिट बनाना है. ऐसा यूनिट बनाना है भाई मेरे को. तो मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये इसका क्या बन जाएगा, ऐसा यूनिट बनेगा. इसको दूसरे शब्दों में याद क्या रखेंगे, न्यूटन याद रखेंगे. ओके, न्यूटन याद रखोगे ना तो सब कुछ ईजी हो जाएगा. कोई पूछेगा फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, तो आप लोगों को क्या बोलना है, न्यूटन. भाई साहब इसके यूनिट है. मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि 30 न्यूटन, तो आप लोग समझ जाओगे कि सर फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, वरना आप लोगों के दिमाग में कुछ समझ में नहीं आएगा. या तो मैं बोलूँगा 45 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, देन यू विल बी कंसिडर एज द फोर्स. ओके, आप लोगों को उसको क्या कंसिडर करना है, फोर्स कंसिडर करना है. क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आज के होमवर्क का. ओके, एक्सप्लेन एंड डिराइव द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. एक्सप्लेन and derive second law of motion. Okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram. Till then, bye bye everyone. We will meet in the next lecture. Take care everyone.